First of all, I congratulate to PS Tope College, Sandur Pagar, and uh, Career Counseling Cell, Career Counseling and Student Development Cell for the organization of this two-day career counseling and opportunities workshop. President of this trust, Dada Tumde, and respected secretary, Sri Bhaskar Dada Tumde, who is very conscious about his institution and development of his college, because I have seen him since from 10 years, and I have also visited this college since from the 10 year for practical purpose and various things. Another member, Dr. Vijay Dada Tumpe, principal of this college, Dr. Ramteke sir, convener of this e-workshop, Dr. Umesh Kanekar sir, who is my best friend and who is my senior, who is my also teacher also, and Dr. Vijay sir, Dr. Mangesh Argokar sir, student development officer, Dr. Parimal sir, member of this placement committee. All the teachers we joined for this career opportunity webinar, and the most important thing, that is the students who is joined for this career opportunity and career counseling e-workshop. Dear students, as we know that since from yesterday, you are hearing the most important word, that is career. And this word this plays very important role in every person's life. Basically, in yesterday lecture, Madam has also described what is the career, how to select the career. Actually, career is nothing but the occupation, uh, profession, and this is undertaken for significant of our life. Now, this there are the number of career opportunities for the UG and PG students. But what happens in our region? Many students don't know what are the most important opportunities for to make their career. Uh, this is the most important word. Many people, many students, and even many persons, they are thinking about this word, that is job. Now, this job word, this this is this job for this job word. Many students are thinking and they are wondering, and they are doing their hard work, and their only focus on the job. How I will get the job, and for that job, how and what to do. So my lecture is I have divided my lecture in a two parts, because one thing is most important whenever we select our career, and that's the most important thing is that career selection. In yesterday lecture, madam also described how to select the career. But I have taken another angle, how to select the career. Before the selection of the career, we must think about that. And how we think, that is the one part. Second part of my lecture is, or my talk is the opportunities. What are the opportunities after the UG, after the PG, in a various fields? So, with this, so here, the most important thing in every person's life, that is goal. Uh, Already I have talked to Umesh sir, because as the many students from our region, I will use the dual language, because this is the most important problem for to understand the things what I want to say. So I will use the Hindi. Am I right, sir? Yes, sir. Yes, no Yes. doubt. ये जो अभी मैं दिखा रहा हूँ स्लाइड, इसमें एक वर्ड है गोल. वो गोल ही मैंने थोड़ा ओवल बनाया है. ये जो गोल है, इसके बारे में बहुत बार स्टूडेंट या कोई पेरेंट्स भी हो तो वो सोचते नहीं. अभी भास्कर दादा ने बोला है कि बच्चे मतलब या पेरेंट
उसके बारे में सोचते नहीं कि उसका गोल क्या है, उसको क्या करना है उसके लाइफ में, कुछ करियर विल यू चूज, अगर उसको पूछा जाए कोई भी स्टूडेंट को या किसी भी को भी, तो दे डू नॉट थिंक अबाउट दैट वर्ड और दैट पर्टिकुलर थिंग, दे डू नॉट थिंक अबाउट व्हाट टू डू, उसको क्या करना है वो भी वो सोचता नहीं है। मैं जब भी मेरे स्टूडेंट को सवाल पूछता हूँ, बीएससी फर्स्ट ईयर में आने वाले, सेकंड ईयर में जाने वाले, फाइनल ईयर पास आउट होने वाले, कि आपको क्या करना है, आपका गोल क्या है, देयर आंसर इज ओनली सर वेट वी डू नॉट थिंक, वी डू नॉट डिसाइड। वो यही आंसर देते हैं कि हमने डिसाइड ही नहीं किया है। मैं जब भी पेरेंट्स से भी कम्युनिकेट करता हूँ, बिकॉज आई एम वर्किंग एज अ काउंसलर फॉर दी पेरेंट्स ऑल्सो एंड स्टूडेंट ऑल्सो सिंस फ्रॉम दी 8th क्लास, we have started this social work on the root level. So when I interacted with the parents also, they told me or they tell me that, sir, we have not decided. We will think after 12th. So this is one thing. और दूसरी है कि दूसरी बात ये भी इम्पोर्टेंट चीज है कि जब भी अपन करियर सिलेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम टाइम कभी कभी बच्चे 2-3 ऑप्शन रखते हैं, रखना चाहिए, 2-3 ऑप्शन चुनना चाहिए अपने पास कि भाई ये नहीं हुआ तो ये। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मल्टीपल ऑप्शंस रखे हैं और उस ऑप्शंस के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे। यू जस्ट सिलेक्टेड, यू वांट टू बी अ डॉक्टर, यू वांट टू बी अ इंजीनियर, यू वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर, अपने आप सभी हाईएस्ट टॉप लेवल के जो भी गोल हो अचीव करने के लिए उसको डिसाइड किए करियर, तो लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। दूसरा ये है सबसे इम्पोर्टेंट, ये गोल के बारे में, अपना जो भी गोल है, अपने को जो भी अचीव करना है उसके बारे में अपन ने, जैसे कि मैक्सिमम टाइम में देखता हूँ कि जैसे अपन ने देखा होगा कि पारंपरिक जो बोलते हैं अपन, कि जैसे अपने घर में अगर कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर की तरफ ही पढ़ेगा, अपने घर में अगर कोई लेक्चर है तो लेक्चरर की तरफ ही पढ़ेगा, और इसके घर में उसके घर में अगर कोई बिजनेस चल रहा है, उसके पापा का कोई होटल है तो वो सोचेगा कि मैं तो यही चला सकता हूँ। दे डू नॉट थिंक अबाउट द अनदर जॉब और अनदर करियर, तो उसके बारे में भी अपन ने सोचना चाहिए। दूसरा ये है कि मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट कांट थिंक अबाउट देयर गोल इवन आफ्टर द यूजी, और इवन आफ्टर द पीजी अगर उसको पूछा जाए कि भाई आप इसमें क्यों, मतलब ये क्या करना चाहते हो, आपने पीजी कर रहे, नहीं अभी मैं ऐसे ही मेरे पेरेंट ने बोला है मैं इसलिए वो पीजी में गया हूँ, देखते हैं बाद में क्या करता है, बीएड के बाद में देखते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन अवर लाइफ। अभी क्या होता है कि अपने लाइफ में अपना करियर चूज करने के लिए और अपने लाइफ के 2 टर्निंग पॉइंट होते हैं। एक टर्निंग पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट आता है 12वीं के बाद, तो आज अभी टर्निंग पॉइंट चूज करने वाले हैं बच्चे, आज रिजल्ट है पर, सो वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, बिकॉज आफ्टर दी 12th देर आर दी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, उसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, इतनी अपॉर्चुनिटीज होती है कि मतलब उसको अपन गिन नहीं सकते, इतने अपॉर्चुनिटीज है उसको गिना जाए तो। लेकिन आप इस पिक्चर में देखेंगे, आपको मैं इसमें ये दिखा रहा हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पर येलो मार्क किया है, इसमें पेरेंट्स और स्टूडेंट्स 12वीं के बाद 2 ही चीज के बारे में सोचते हैं मैक्सिमम टाइम, जब भी मैं बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ। है जैसे आपको ये एक दिख रहे हैं, इनके हाथ में नोटा है, जैसे कि ये सी है, ये पायलट है, लॉ किए हुए वकील है, नेवी ऑफिसर है, ये आईपीएस ऑफिसर है, कलेक्टर है, साइंटिस्ट है, इनके बारे में तो कोई सोचता नहीं कि भाई मैं ये भी कर सकता हूँ करके, और पेरेंट भी नहीं सोचते कि मेरे बच्चों को मुझे साइंटिस्ट बनना है। ये बचपन से कोई नहीं सोचता, या उसके 10वीं के बाद भी नहीं सोचता, 12वीं के बाद भी नहीं सोचता, इवन एट यूजी लेवल वो भी नहीं सोचता। तो ऐसा भी अपने दिमाग में आना चाहिए कि मैं ये प्रोफेशन को क्यों नहीं सिलेक्ट करूँ। तो ऐसे, और इसके बीच में सबसे इम्पोर्टेंट जो भी प्रोफेशन है वो है टीचर। टीचर सभी प्रोफेशनिस्ट को पढ़ाते हैं, वो जो करियर है वो भी सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं टीचर हूँ इसलिए वो करियर इम्पोर्टेंट है, इन सभी के मास्टर जो है वो है टीचर।
तो इसके बारे में भी अपन ने सोचना चाहिए। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो है, अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, उस प्रेजेंट सिनेरियो को अगर अपन देखेंगे, इफ वी सी दैट प्रेजेंट सिनेरियो, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि अपन जब भी ये करियर के बारे में सोचने के लिए जाते हैं तो मैक्सिमम बच्चे ऐसे उसको डरते, फ्रैटन होते हैं। क्यों फ्रैटन होते हैं कि मेरा कोई गलत तो नहीं होगा, मेरा प्रॉपर सिलेक्शन तो नहीं हुआ, मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो डर जाते हैं, वो सोच पाते हैं उनको क्या करना है, और वो ऐसे ही सोच में रहते हैं। दूसरा है कि कांट थी, वो मतलब जैसे अभी मैंने बोला सोच नहीं पाते वो, मतलब उसके बारे में, करियर के बारे में या जो भी उसका गोल है उसको चूज करना है उसके बारे में सोचते नहीं। वो बोलते हैं देखेंगे बाद में, जो भी करना है वो बाद में सोचेंगे। और उसका मतलब 12 के बाद जो भी उसको, अभी मैं पूरा फोकस मेरा मेरे लेक्चर का जो है आफ्टर ग्रेजुएशन वाला है, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स हु आर ज्वाइन हियर आफ्टर दी दे आर इन द यूजी और इन द पीजी। बिकॉज फर्स्ट जो पार्ट था करियर अपॉर्चुनिटी वाला, वो अपना थोड़ा मिस हो गया, क्योंकि 12वीं के बाद का जो अपॉर्चुनिटी रहती है उसको अपन, अभी आप इंजीनियर नहीं बन सकते, अभी आप डॉक्टर की तरफ नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपका वो ऑप्शन चला गया। लेकिन वो ऑप्शन गया ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन है, उसके बारे में अपन ने सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर नहीं बन पाए, इंजीनियर नहीं बन पाए तो कुछ नहीं कर सकते आपके लाइफ में। देयर आर सो मेनी ऑप्शन, यू मस्ट थिंक अबाउट दैट। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दैट इज द फ्लो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है कि क्या होता है कि मैक्सिमम बच्चे फ्लो के पीछे जाते हैं। क्या होता है कि जैसे कि 10 बच्चे हैं एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो एक में मतलब एक क्लास में है, और एक उनका लीडर रहता है, मैक्सिमम टाइम उसको फॉलो करते बच्चे। और वो क्या करते हैं, एक ने अगर ऐसा किया कि मुझे एमएससी केमिस्ट्री के लिए जाना है या बॉटनी के लिए जाना है या एमए के लिए जाना है, इसी सब्जेक्ट में जाना है, तो वो क्या करते हैं, हमको भी इसमें जाना है ऐसा सोचते हैं और उसी की तरफ बढ़ जाते हैं। और वो ये नहीं सोचते कि उसमें अपन क्या कर सकते हैं, अपन कहाँ है। वो जो सोच रहा है उसका ठीक है कि उसने कुछ तो भी उसके बारे में मालूम है, उसके बारे में सोच रहा है, लेकिन वो जो उसके फ्लो में जा रहा है उसको तो मालूम नहीं। पेरेंट्स भी ऐसा कभी कभी करते हैं, पेरेंट्स मैक्सिमम टाइम ऐसा करते हैं कि वो फ्लो के पीछे जाते हैं कि भाई बहुत सारे बच्चे उसमें जा रहे हैं तो फिर मेरे बच्चे को भी मैं उसमें एडमिशन करवाता हूँ। तो उसके बारे में अपन ने बहुत मतलब अच्छी तरीके से वो सोचना चाहिए। इसके लिए एक मेरे पास एग्जाम्पल है। अभी एग्जाम्पल ये सबसे इम्पोर्टेंट मायना रखता है जब भी अपन कोई चीज बताते हैं किसी को। एक एग्जाम्पल है, मेरा ही खुद का एग्जाम्पल है। मैं जिस क्लास में मतलब यूजी किया था, उस क्लास में हम करीबन 10 ही बच्चे थे जब 2002 में। फिर हमने डिसाइड किया कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे पीजी करना है। तो मेरे साथ सात हम 7 स्टूडेंट्स एक ही कॉलेज में एक ही सब्जेक्ट में ज्वाइन हुए एमएससी पढ़ने के लिए। उमेश सर को पता है, उमेश सर और ये सभी लोग हमको आके देखते थे कि भाई एक ही गांव से एक ही कॉलेज से एक ही सब्जेक्ट के लिए बच्चे कैसे क्या गए। तो ये होता है फ्लो। उसमें के कुछ बच्चे ऐसे थे कि वो पैशनेट थे कि उनको बॉटनी करना था। जैसे मेरा एग्जांपल मैं बताता हूँ कि आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट माय सब्जेक्ट, एंड एट दैट टाइम, सिंस फ्रॉम दैट टाइम, एंड आई एम ऑल्सो वेरी मच फोकस ऑन माई करियर। मैंने उसी टाइम से फिक्स किया था कि मुझे एमएससी ही बॉटनी करना है, मुझे लेक्चरर ही बनना है। आई डोंट वांट टू चूज एनी अदर थिंग। तो मैं फोकस था उस टाइम से। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि अभी जो भी बच्चे ज्वाइन हुए हैं वो ऐसा सोचते हैं कि भाई मैं जो भी सिलेक्ट कर रहा हूँ मेरा सही जा रहा हूँ या नहीं। दूसरा है कांट डिसाइड द फील्ड। तो अपन जब भी इतने सारे अपने पास ऑप्शंस आते हैं तो जंबल हो जाते हैं। अपन फील्ड के बारे में सोचते नहीं है कि मुझे क्या कौन सा फील्ड। आप आपके पेरेंट्स को थोड़ा सा उसमें ले सकते हैं, कॉन्फिडेंस में, या आपके टीचर को पूछ सकते हैं। मैं मेरे बच्चों को बार बार बोलता हूँ कि आप भाई आपको जो भी करियर चूज करना है आप थोड़ा सा डिसाइड करो। क्लास में जब मैं सवाल पूछता हूँ और उसके बाद मेरे से डिस्कस करो कि आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि ठीक है डगवाल सर बोल रहे हैं, ठीक है बोलते हैं, उनको क्या पढ़ाने का काम है। तो ऐसा नहीं है, अपने वो उसके बारे में भी सोचना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अपना परसेंटेज क्या होता है
एक्चुअल में अपन मतलब बच्चे जो यूजी में आते हैं तो उनका एक्चुअल में ही परसेंटेज ही मतलब वो जैसे कि पहला जो उनका अपॉर्चुनिटी छूट गया, ऐसे कुछ गिने चुने बच्चे रहते हैं कि जिनका परसेंटेज अबो 80 या 90% तक रहता है। उसके अलावा जो बच्चे आते हैं वो बाय चांस भी आते हैं यूजी में, फिर वो ऐसा सोचते हैं कि भाई मैं गलती से इसमें आ गया हूँ यूजी में, और अब मैं कैसे तो भी कर लूंगा ग्रेजुएशन और फिर आगे बढ़ते रहूंगा, ऐसा मतलब एक में को ढकलते जैसे वो जैसे बोलते हैं ना अपन चले जा रहे हैं अभी पास होते जा रहे हैं, तो ऐसा भी बच्चे सोचते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे एवरेज रहते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं मैं तो कर नहीं सकता क्योंकि मेरे परसेंटेज बहुत हुआ है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसमें अपन ने ऐसा सोचना ही चाहिए नहीं चाहिए कि मुझे 12वीं में इतने परसेंटेज मिले इसलिए मैं बहुत ही होशियार हूँ, और मुझे बहुत कम मिले इसलिए मुझे कुछ नहीं आता। इफ यू डू द हार्ड वर्क यू कैन अचीव योर गोल। इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मेरे परसेंटेज तो 12वीं में 63 थे। मैं जब मेरा तो ये करियर था, मुझे मेरे पेरेंट्स जो थे उस टाइम में हमको मालूम नहीं था कि हमको क्या करना है। हमारे जो पेरेंट डिसाइड करते थे, मेरे मामा जी थे, वो उन्होंने डिसाइड किया उसको डीएडी करना है। पूरे महाराष्ट्र में फॉर्म भरे लेकिन पूरे कई नंबर नहीं लगा, तो मेरा वो जो टीचर बनने का सपना था वो वहाँ से टूट गया। फिर मैं बीएससी में आया, लेकिन मैंने बीएससी में जब आया तो मेरे टीचर ने मुझे इंस्पायर किया कि वो सब्जेक्ट के बारे में, तो एक पैशन तैयार हो गया मेरे में। तो आई हैव डिसाइडेड माय करियर सिंस फ्रॉम दैट टाइम एंड आई हैव अचीव। तो मैंने अचीव किया। आप देख सकते हो कि एक 63 वाला एक 78% तक कैसे गया। और मेरे पास और भी एग्जांपल है कि जो बच्चे 63 नहीं, मतलब उसको बहुत ही कम परसेंटेज, उसके लिए मेरे पास एक मेरे खुद का एग्जांपल है। मेरा भाई, उसको 12वीं में 50% थे, बीएससी में 45% थे। नाउ ही इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन मैथमेटिक्स गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नागपुर। हाउ यू हैव अचीव, आई विल टेल यू लेटर। और दूसरा ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कुछ बच्चे अंडर स्ट्रेस रहते हैं, वो बहुत ही स्ट्रेस में रहते हैं। क्यों मैं क्या करूंगा, और कंफ्यूजन माइंड में रहते हैं कि होशियार भी रहते हैं लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाते, स्ट्रेस में रहते हैं। उसके पेरेंट्स भी उसको ये करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट वाली चीज जो मैंने बताई है, ये पेरेंट डिसीजन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या होता है, पेरेंट मैक्सिमम टाइम अपने बच्चे के करियर में इंटरफियर, मतलब इंटरफियर नहीं मैं बोलूंगा, उसको इंसिस्ट करते रहते हैं कि वो देखते हैं बाहर की दुनिया की कुछ ऐसे प्रोफेशंस रहते हैं कि जिसमें बहुत ज्यादा करियर है, उनको लगता है कि इसमें करियर है। कुछ पेरेंट अपने बच्चे को ऐसा बोलते हैं कि आपको ये केमिस्ट्री करना है, उसको उनको लगता है कि भाई केमिस्ट्री करने के बाद उसका करियर अच्छा हो सकता है। कुछ पेरेंट उसको बोलते हैं कि नहीं, तुझे आईएएस की तरफ ही बढ़ना है, तुझे एमपीसी करना है, तुझे एमएससी इसमें ही करना है, और ये यही प्रोफेशन तुझे करना है। लेकिन उसको वो बच्चे को नहीं कॉन्फिडेंस में लेते या पूछते कि भाई आपको क्या करना है। ऐसा मैक्सिमम टाइम होता है। मैंने बहुत पेरेंट्स को, जब भी मैं मेरे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि आपके पेरेंट्स को भी लेकर, आपके फादर को भी लेके आओ, आई वांट टू डिस्कस विद। तो फिर वो पेरेंट मुझे बोलते हैं सर उसमें तो करियर ही नहीं है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। वो नहीं है, उसमें क्या नहीं है, आप क्या हो, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मतलब आपको जो भी करियर चूज करने वाले हैं, आप उसमें क्या कर रहे हो, उसमें आप कहाँ क्रीम में रहते हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ऐसा नहीं है कि कोई भी फील्ड में कोई करियर नहीं है। मैं तो यही बोलूंगा कि अगर एमए मराठी भी किया होगा, अगर उसमें कैलिबर होगा अच्छा, और वो है कि वो पीजी कर चुके हैं, लेकिन कुछ तो भी अपने में भी होना चाहिए। अगर अपने अपने मन से अगर वो अपने करेक्ट। और इस प्रेजेंट सिनेरियो का और भी एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि अपन करियर सिलेक्ट कर तो लेते हैं, मतलब करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अपन जिस सिलेबस को पढ़ रहे हैं, करिकुलम को पढ़ रहे हैं, क्या वो करिकुलम अपने को उस तरीके से ले जाने के लिए अच्छा है और वो हेल्प करेगा, वो भी सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी एक प्रेजेंट सिनेरियो के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है करियर प्लानिंग की। ये सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें आप एक साथ में ही करोगे, ये ग्रेजुअल प्रोसेस होती है। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सब आप सोच रहे हो और सभी चीजें कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है।
ये थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ता है, उसके लिए आपको महीनों लग सकता है, 2-4 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन वो सोचना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आइडेंटिफाई योर स्किल। आपको आपके अंदर क्या स्किल है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये मतलब ये इसकी तरफ करियर अच्छा है तो आप उसकी तरफ जाए। तो इसमें स्किल आइडेंटिफाई आपको करती भी आनी चाहिए। आपके पास बहुत सारी स्किल होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, कोई बच्चे स्पोर्ट में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनको ऐसा इंसिस्ट किया जाता है, ऐसा बताया जाता है कि भाई इसमें क्या पढ़ा है, ये कुछ भी नहीं होता है उसमें, लेकिन उसका स्किल उसमें है, उसका स्किल बहुत अच्छा है। वो अगर अच्छा ग्रेजुएट होता है थोड़ा सा और वो उसमें जाता है तो कुछ तो भी करेगा। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि स्पोर्ट ही अच्छा है, उसका स्किल उसमें अच्छा है। कोई अच्छा है, उसको ड्रामा में अच्छा रहता है, लेकिन उसको एक लाइन नहीं मिलती। जैसे अभी भास्कर दादा ने बोला कि भाई फार्मिंग भी बहुत अच्छा है ना, फार्मिंग बहुत अच्छा है। अगर उस बच्चे को उसमें इंटरेस्ट है, उसकी वो कोई स्किल है, तो वो भी अगर वो आइडेंटिफाई करता है तो उस करियर के प्लानिंग में उसको हेल्प हो सकता है। दूसरा है, तो आपको आपका करियर जो है आपको लिंक करना पड़ेगा। लिंक कैसे करना पड़ेगा कि अगर आप एक करियर के बारे में सोच रहे हो, जैसे कि आपने ऐसा सोचा ग्रेजुएशन में है आप, मतलब कुछ बच्चे इफ यू आर इन द अंडर ग्रेजुएट में है, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, और आपने सोचा है कि आपको एमपीएससी करना है या यूपीएससी करना है, तो आपने सिर्फ सोचा है, उसको कोई लिंक नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि आपको लिंक करना पड़ेगा कि भाई उसके लिए मुझे क्या करना है, और कोई थोड़ा सा कोर्स मैं कर सकता हूँ क्या, और कोई किताब मैं पढ़ूँ क्या, उसका क्या है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो वैसा आपको लिंक करना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा यानी सर्च करना पड़ेगा, और थोड़ा सा गाइडेंस लेना पड़ेगा। उसको मैं बोलूंगा ये है लिंक योर करियर और नो योर सेल्फ। आपको खुद के बारे में पता करना पड़ेगा आप क्या है। इसके लिए मैं एक कोट बताना चाहूंगा, मैंने नीचे भी मार्क किया है। वी नो व्हाट वी आर बट वी डोंट नो व्हाट वी डू। मुझे सबसे पसंद है कि अपन क्या है या अपने को मालूम रहता है। आज मैं क्या हूँ, आज मुझे मालूम है मैं एक लेक्चरर हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ। फ्यूचर में मैं क्या बन सकता हूँ, वी डोंट नो व्हाट वी डू। उसके बारे में अपन ने सोचना चाहिए। बच्चे ये सोचते नहीं है, मैक्सिमम पेरेंट भी नहीं सोचते हैं कि मेरा बच्चा ये है क्या कर, वो यही सोचते हैं कि नहीं ये नहीं कर पाएगा ऐसा। तो वी मस्ट नो योर, यू मस्ट नो योर सेल्फ। एंड दूसरा है कि लर्न योर सेल्फ। आपको खुद से ही मैक्सिमम चीजें लर्न करना पड़ेगा। कैसा होता है कि अभी सभी मैक्सिमम बच्चे अपने पेरेंट पे डिपेंडेंट होते हैं। क्या होता है कि उसके पेरेंट ही बच्चे मतलब स्कूल कॉलेज में मिलने को आते हैं हमको, उसके पेरेंट ही एडमिशन के लिए जाते हैं। वो बच्चा सिर्फ एडमिशन होने के बाद डायरेक्टली उसको वो स्कूल में या कॉलेज में उसके पेरेंट लेके जाते हैं कि भाई ये है तेरा कॉलेज और अभी आपको यहाँ रहना है और यहाँ पढ़ना है। कुछ बच्चों को पेरेंट ने क्या किया अभी तक, वो जो जो भी वो उसमें जो ये था, जो भी वो जर्नी हुई एडमिशन वाली, वो मालूम नहीं। और दूसरा है कि कुछ चीजें बच्चे टीचर पे भी डिपेंडेंट रहते हैं। टीचर बोलेंगे तो हम करेंगे, अब टीचर बताएंगे तभी करेंगे। ऐसा नहीं कि अपन ने कुछ तो भी थोड़ा सा लर्न सोचना चाहिए, देखना चाहिए। अभी आपके पास, हमारे टाइम में तो मोबाइल भी नहीं थे, हमारे पास तो मोबाइल क्या, हम वो लैंडलाइन भी नहीं यूज कर सकते थे। अभी तो ऐसा जमाना है, आप अभी मोबाइल में ऐसा एक वर्ड डालो, मेरा नाम डालो डगवाल, तो आपको पूरा मिलेगा कि डगवाल क्या है। आपको तो गूगल में जो भी है वो मिल जाएगा। तो इट इज वेरी इजी नाउ। तो आपको वो भी सोचना पड़ेगा क्या क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है करियर प्लानिंग में, ये है सिलेक्शन। ये सिलेक्शन आप कैसे करते हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले ही बोला है कि आपके पास जैसे यूजी के बाद में जो भी अपॉर्चुनिटीज होती है वो मैं बताऊंगा अभी सेकंड पार्ट में। अभी सिलेक्शन में आपका सिलेक्शन बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि परफेक्ट होना चाहिए और एक ही टाइम में होना चाहिए और एक ही होना चाहिए। कुछ ऐसे पैशनेट होते हैं बच्चे, जैसे आपने देखा होगा कि मैक्सिमम आईएएस ऑफिसर फ्रॉम अदर स्टेट, केरला जो है, वो बच्चे के पेरेंट्स और बच्चे 10वीं से ही सोच के रखते हैं कि मेरे मुझे आईएएस बनना है, वो दूसरा ऑप्शन ही नहीं चूज करते। अपने रीजन में क्या होता है कि 10वीं तक वो
सिर्फ परसेंटेज के बारे में सोचते जाता है, मेरे बच्चों को 98 मिल गए, 98 ही मिलना चाहिए, 99.99 मिलना चाहिए, 12 में भी मुझे मेरे बच्चों को इतना मिलना चाहिए। बच्चे भी वही सोचते हैं और वो एक करियर में फिक्स रहते हैं कि हमको यही करियर में जाना है, वो करियर सिलेक्शन। लेकिन उसके नीचे जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स भी उस डायलेमा में रहते हैं। कुछ पेरेंट्स सिलेक्ट करते हैं, कुछ बच्चे भी सिलेक्ट करते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा कि मेरा एक फ्रेंड है, उसका करियर, उसके दो चीजें मैं लिंक कर रहा हूँ, पेरेंट्स और उसका करियर सिलेक्शन। उसके पेरेंट ने उसको 80% मिले, मोर देन 75, एंड हिज पेरेंट इज डिसाइडेड he has to take एडमिशन फॉर डीएड। उसने एडमिशन ले लिया, जो मतलब 1998 की बात है। अभी मैं उसको लिंक कर रहा हूँ और अभी प्रेजेंट सिनेरियो में ला रहा हूँ। उसके पेरेंट ने डिसाइड किया उसको डीएड करना है। उसको नहीं पूछा कि भाई उसको बनना था डॉक्टर, बीएमएस के लिए भी वो क्वालिफाई था, मतलब वो क्वालिफाइड था, वो हो सकता था उसमें अगर थोड़ा सा उसके लिए कोशिश करते थे। लेकिन उसके पेरेंट ने बोला कि भाई डीएड करना है, तो यह एडमिटेड, मतलब उसने एडमिशन ले लिया, डीएड कंप्लीट कर लिया 2 साल के बाद। उसके बाद में जगह ही नहीं निकली, उसका जो भी उसने करियर सिलेक्ट किया था वो वैसे ही रह गया, डीएड हो गया। फिर से वो बीएससी में आया, बीएससी किया 3 साल, फिर एमएससी किया 2 साल, फिर बीएड किया 1 साल, ऐसा उसका 6 साल गया। और उसका वो फोकस चला गया कि भाई उसको क्या करना है। फिर वो कुछ एग्जाम के लिए या फिर रुके गया और फिर अचीव किया उसने गोल, क्योंकि वो उसके पीछे ही था। लेकिन उसका जो करियर सिलेक्शन था वो थोड़ा सा बाय मिस्टेकल अलग हो गया था और फिर उसमें वो कुछ कर नहीं पा रहा था, तो उसको रिवोट आना पड़ा। तो इसीलिए आपको जो भी आप करियर सिलेक्ट करेंगे तो आपको उस करियर सिलेक्शन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिवर्ट आने की जरूरत हो। और दूसरा एग्जांपल है, एक बच्चा उससे भी ब्रिलियंट था, उसको तो 85 के ऊपर था, वो भी डीएड में चला, उसको सीए बनना था, सीए। ही इज वेरी ब्रिलियंट, बट उसके 2 साल डीएड में गए, उसका जो लिंक था वो चला गया, लेकिन उसमें एंटर हुआ होगा। एक सक्सेस स्टोरी। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, आपने भी देखे होंगे, बहुत सारे टीचर ने भी देखे होंगे कि भाई ऐसा करियर जब अपन सिलेक्ट करते हैं तो वो प्रॉपर है या नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अभी ये बहुत सारे मतलब ये जो पिक्चर है आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा, बहुत बार आई हुई है। अपना जो करिकुलम है, अपन जो करियर के बारे में सोचते हैं कि मतलब अपने कैसा होता है कि क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो रहता है वो एग्जाम का वो एक ही रहता है उसको। जैसे कि अभी आप ही इन लोगों को देखोगे, एलिफेंट है, फिश है और मंकी है, तो हर एक की स्किल अलग है और उनको एक ही एग्जाम देना है। तो अगर इसमें से एक को अगर बोला गया कि भाई आपको फिश को बोला गया कि आपको ट्री पे चढ़ना है, तो वो तो यही सोचते रहेगा पूरे लाइफ में कि आई एम द स्टूपिड, आई कांट क्लाइम ऑन द ट्री। तो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मैंने पहले बताई कि आपको आपके अंदर जो स्किल है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अभी ये सब होने के बाद यू कैन अचीव द करियर, यू कैन अचीव द गोल। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका फाउंडेशन सब्जेक्ट का अच्छा होना चाहिए, आपका बेसिक नॉलेज अच्छा होना चाहिए, आपकी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, आपकी ग्रासिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, और लास्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है जो बताया वो सबसे मुझे अच्छा लगता है, हार्ड वर्क। ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है मेरे डिक्शनरी में। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं हार्ड वर्क हूँ, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है। क्योंकि मैंने जो मेरा बायोडाटा भेजा था, मैंने स्पेशली सबको बोला था कि कैसा है मेरा बायोडाटा, कि मैं पहले कैसा था। अभी इसमें जो फाउंडेशन पे जो है, अभी क्यों ऐसा होना चाहिए। अगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मुझे एमपीएससी करना है, यूपीएससी करना है, वो ग्रेजुएशन में आ गया, उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद उसने डिसाइड किया कि मुझे अभी मैं पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ, तो उसको जो बेसिक जो फाउंडेशन था हर सब्जेक्ट का उसको मालूम ही नहीं है क्या है, तो वो उसको फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो उसका पूरा और 1 साल है, 3 साल तो पहले ग्रेजुएशन में भी
पढ़ रहा है, लेकिन ग्रेजुएशन में उसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी हो गया, तो उसके बारे में सोचा नहीं, तो उसका फाउंडेशन अच्छा नहीं हुआ और उसका बेसिक नॉलेज भी उसके बारे में नहीं हुआ। इसके लिए एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। मेरी एक स्टूडेंट है, उसका नाम भी मैं बताता, मधुरा काले। शी इज वेरी talented and she got 85% in her graduation. By mistaken, she entered in a BSc. उसको 12वीं में भी 85 के ऊपर थे। कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो ग्रेजुएशन में, मैंने जब उसको पूछा कि आपको क्या करना है अभी, तो उसने मुझे बोला फर्स्ट ईयर में कि सर मेरा डिसाइड नहीं है, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, मैंने डिसाइड नहीं किया अभी, सोच रही हूँ कि एमएससी करूँ। फिर मैंने उसको उसका जो ग्रास्पिंग पावर मैंने देखा कि बहुत ही अच्छा ग्रास्पिंग पावर है ग्रेजुएशन में। तो फर्स्ट ईयर होने के बाद उसको मैंने पूछा कि भाई यू आर नॉट ट्राई फॉर यूपीएससी, पर आप उसको कर सकते हो। तो वो बोले कि मुझे पेरेंट्स को कन्विंस करना बोलना पड़ेगा। मैंने उसको बोला कि ठीक है अपन सोच दो उसके बारे में। तो मैंने उनके पेरेंट्स को कन्विंस किया, उसमें 1 साल गया। अभी फाइनल ईयर में उसका डिसाइड हुआ कि उसको यूपीएससी करना है। अभी तब तक उसका डिसाइड नहीं हुआ, तो उसके जो बेसिक उसके कंप्लीट होने थे वो हो नहीं पाए उस तरीके से उसको, और अभी वो पढ़ाई कर रही है उसके। तो ऐसा होता है कि उसको ऐसे किताबें पढ़ना पड़ा, राइट फ्रॉम 5 to 10 क्लास, कौन से जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं पहले से, मतलब उसे बोलते हैं ना एमपीएससी वाले कि आपको 1 से लेके तो 10वीं तक की किताबें पढ़ना पड़ेगा सभी सब्जेक्ट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपना उस तरीके का फाउंडेशन तैयार नहीं हुआ, आपने उस तरीके उसके बारे में सोचा ही नहीं। तीसरा है सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। अपन अभी जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट है, उसको मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि जो भी करिकुलम होता है वो कंसेप्चुअल होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि है ही करके, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, मतलब अपन थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, जैसे कि आंसर इन 1 सेंटेंस है, थ्योरेटिकल आंसर है, वो लिख पाते हैं। उसको बोला गया है कि भाई आप आपके कॉलेज में कॉलेज को डिस्क्राइब करो, तो वो करेगा, अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करेगा, थोड़ा सा कम ज्यादा होगा। लेकिन उसको अगर पूछा जाए कि आपके कॉलेज में कितने टीचर है, तो फिक्स आंकड़ा पूछा गया, उसको नंबर पूछा तो मालूम नहीं, उसको फिक्स नहीं होता है, कंफ्यूज है। तो उस तरीके से उसने कंसेप्चुअल अगर एक्वायर करता है, तो वो उसके माइंड में फिट रहेगा कि भाई इतने अपने कॉलेज में टीचर है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। और ग्रास्पिंग पावर, कुछ बच्चे की ग्रास्पिंग पावर कम होती है, किसकी ज्यादा होती है। और ये ग्रास्पिंग पावर कम ज्यादा है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है। उसके लिए वर्क, ये हार्ड वर्क सबसे इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम जो भी यूपीएससी एमपीएससी में आने वाले बच्चे होते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन आते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे एवरेज रहते हैं जो इस प्रोफेशन में आते हैं और उसका करियर वो अचीव करते हैं, गोल अचीव करते हैं। तो इफ यू डू द हार्ड वर्क, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द लाइफ। लेकिन अपन ने उसके बारे में सोचना चाहिए। उमेश सर, एम आई ऑडिबल ना? Yes, sir. Yes, you are Yes, audible. sir. You are audible. बोलते जाऊंगा, Yeah. ऐसा नहीं होना चाहिए। Please raise your voice, sir. ओके ओके। अभी ये जो करियर का पार्ट है, अभी मैं दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अभी विदिन 2 to 3 मिनट्स बताऊंगा। हाउ टू ओवरकम, अपने को कैसा करना है, ये इसके लिए अपने को पास प्लान होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि 100% प्लान होना चाहिए, पहले से ही होना चाहिए। सभी सब्जेक्ट का आपके पास अगर बेस तैयार होता है थोड़ा थोड़ा, तो आपको आगे जाके काम आएगा। आपको करेंट अफेयर के, अगर आप ऐसा करियर चूज करते हो जिसमें बहुत ज़्यादा, मतलब आपको आगे जाके करना है, जैसे यूपीएससी एमपीएससी है, उसके अलावा भी कुछ करियर है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के बारे में मालूम होना चाहिए। उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी, जैसे मैडम ने ये बताया उनके लेक्चर में कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, सॉफ्ट स्किल है, तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी होना चाहिए कि भाई आप ग्रेजुएशन में हो और आपको कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए और आपको इंग्लिश भी आना चाहिए, ये सब आना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये सब ग्रेजुअल होती है, ऐसा एकदम फास्ट नहीं होता है। आपको थोड़ा 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 सोचना है। इसीलिए तो आपके, मतलब अपने कॉलेज में बहुत सारे सेल होते हैं, जैसे कि करियर गाइडेंस सेल है, अलग अलग इंग्लिश डिपार्टमेंट को कम्युनिकेशन स्किल कोर्स करता है। तो ऐसे हर चीज़ें में आपने इंटर होना चाहिए
और ये आपके करियर के लिए होता है, आपके फ्यूचर के लिए होता है। तो ऐसा आपको होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। और अभी ये सब चीजें करने के लिए आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। मतलब आपको स्मार्ट बनना है, मतलब ऐसा स्मार्ट दिख रहे हो ऐसा नहीं बनना है। स्मार्ट इन द सेंस कि मैं जैसे एग्जांपल कोट कर रहा हूँ कि जैसे आप देख रहे हो कल जो शासन के सर है, स्टूडेंट वेलफेयर डेवलपमेंट के डायरेक्टर जो यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बताया था वो किसमें फेल हुए, तो क्यों उस करियर को अचीव नहीं कर पाए। उन्होंने बताया था वो जीडी में, वो उनको मालूम नहीं था जीडी के बारे में। और ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ मैंने रिज्यूम लिखा है, क्या होता है बच्चे अभी जो भी ग्रेजुएशन में बच्चे हैं उनको बायोडाटा यही मालूम होता है। जैसे शादी में बायोडाटा भेज के अपन शादी करना है तो बहुत बार वो बच्चे अगर होते हैं कि भाई बायोडाटा क्या है। इसके अलावा बहुत सारे टर्मिनोलॉजी उसको करिकुलम वाइज सीवी बोलते हैं। आपको बोला गया एक आधे कंपनी वाले ने प्लीज सेंड मी योर सीवी, आप दिन भर सोचते रहेंगे कि भाई सीवी क्या है। तो और उसको कैसे बनाना है ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है, वो भी एक इंप्रेसिव होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट, मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मुझे और आपको अपॉर्चुनिटीज बताना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये क्यों मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप जो करियर सिलेक्ट करने वाले अपॉर्चुनिटीज उसके लिए सबसे सब चीजें, कुछ चीजें इसके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी मैं जीडी बता रहा हूँ, ग्रुप डिस्कशन, बहुत सारे बच्चे उनको मालूम ही नहीं होता है जीडी क्या है। नाउ अ डेज इन अवर करिकुलम देयर इज ऑप्शन फॉर जीडी। जीडी बहुत सारे करिकुलम में आ गए, हमारे इसमें भी आ गए। तो उस जीडी में आपकी जब भी जीडी होता है तो जैसे कि 1000 या 100 बच्चे अगर कहा जाते हैं तो उसमें वो ऐसा नहीं कि पर्सनली कांटेक्ट करते हैं, तो ग्रुप में डिवाइड करके 10-10, 12-12 बच्चों को उनका एक टॉपिक देते हैं, कॉमन टॉपिक, उसको डिस्कस करने लगाते हैं। उसमें आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आप में लीडरशिप है क्या, तो सब वो देखते हैं आपको। जब आप बोलते हैं एक के साथ, जैसे भी डिस्कशन होता है ग्रुप में, तो उसमें से वो कुछ चूज करते हैं कि भाई ये तो बेस्ट बात पर्सनल इंटरव्यू, उसके बाद उसका पर्सनल इंटरव्यू जाता है और 10-12 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं उनका पर्सनल। तो ऐसा आपको थोड़ा थोड़ा मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको पूरा जीडी के बारे में मालूम होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा तो भी मालूम होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं अभी बता रहा हूँ, यह है इंटरव्यू। इंटरव्यू हर चीज का होता है, हर कोई पोस्ट है विदाउट इंटरव्यू होती नहीं है कि आपको एक मेरिटोरियस सर्टिफिकेट मिल गया, जैसे कि आपको एक 95% मिले और आपको कॉल आ गया घर पे कि नाउ यू आर अपॉइंटेड एज एन ऑफिसर बिकॉज यू हैव गॉट 95%। ऐसा नहीं होता है। आपके पास जो है आपको वो आप प्रूव करना पड़ता है थोड़ा सा तो भी कि भाई मुझे जो 95% मिले है, कुछ तो भी है वो 95% भी। तो वो इंटरव्यू के बारे में भी कुछ मतलब जो भी आप करियर सिलेक्ट करोगे उसके लिए आपको उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। आपको उसके बारे में सब्जेक्टिव नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है एटीट्यूड। आपके एटीट्यूड पर उसका 40% सक्सेस डिपेंड होता है। और उसके बाद में आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो है। और सबसे बहुत बार मैंने इंटरव्यू भी कंडक्ट किए हैं, बहुत बार इंटरव्यू भी मैं दे चुका हूँ। कॉमन क्वेश्चन किया जाता है, टेल अस अबाउट योर सेल्फ, आपके बारे में बताओ। तो उस टाइम में बच्चे जंबल हो जाते हैं कि भाई अबाउट योर सेल्फ बोला तो उसका नाम बोल देता है और वो बंद हो जाता है, बता तो नहीं आगे। तो उसने वो सोचा ही नहीं होता है कि उसको क्या बोलना है अबाउट योर सेल्फ। टेल मी अबाउट योर फैमिली, वो ये सोच के जाता है कि मैं अगर मेरे सब्जेक्ट का मैं पढ़ा हूँ, मेरे नॉलेज है तो इट्स ओके, मैं वो बताऊंगा कि व्हाट इज बॉटनी, व्हाट इज केमिस्ट्री। लेकिन वो ये सोचता नहीं कि अगर मुझे ये पूछा गया तो मैं क्या बताऊंगा। इसीलिए उसके बारे में ऐसा नहीं कि मैं ये बता रहा हूँ कि भाई अबाउट योर सेल्फ ही पूछेंगे, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ पूछते हो। तो वो उसी में ही उसको चूज करते हैं कि भाई ये अच्छा इंट्रोड्यूस कर रहा है, मतलब इसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, इसका फ्लुएंसी अच्छी है, ये सब चीजें उसमें अच्छी है। तो इसीलिए आपकी मतलब आपको उसके बारे में थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 100% आप आज ही इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दो, सर बता रहे हैं कि भाई इंटरव्यू भी सबसे इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है। आपको उसके बारे में सोच के रखना पड़ेगा। अगर आप जैसे कि एक आधा प्रोफेशन चूज करना चाहते हैं, जैसे कि कारपोरेट सेक्टर है
या फिर एमपीएससी है, यूपीएससी है, कोई भी सेक्टर हो, तो आपको थोड़ा सा तो भी उसके बारे में सोच के रखना पड़ेगा कैसे कैसे होता है। अभी तो बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, आप लाइव इंटरव्यू मतलब कुछ इंटरव्यू भी देख सकते हो, वीडियो भी देख सकते हो कि कैसा अपना एटीट्यूड होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट वाला जो है, उसके बाद ये सब चीजें अगर आप एक्वायर करते हो तो आपको उसमें सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। तो ये इसमें आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। और ये स्मार्ट बनने के लिए अभी की जो जरूरत है, अभी नाउ डेज एवरी एवरी पर्सन, एवरी स्टूडेंट विद देयर हैंड देयर इज अ स्मार्टफोन। पहले स्मार्टफोन इन सब चीजों के लिए यूज करते थे, कन्वर्सेशन, एंटरटेनमेंट, ये सब चीजें के लिए। इसमें मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी। अभी मैक्सिमम बच्चे जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं अभी एजुकेशन के लिए, मैक्सिमम पर्सन जो है, हम लोग भी, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, अभी जो एजुकेशन हम बच्चों को देना चाह रहे हैं वो स्मार्टफोन के जरिए ही देने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे भी उसी के से जुड़ रहे हैं, और बच्चे भी उसका अगर अच्छा इस्तेमाल करे तो वो अच्छा ही हो सकता है। ये सब चीजें मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अभी ये तो एजुकेशन रिलेटेड वेबसाइट से आप देख सकते हो। अभी जो दूसरा फेज है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इस पर मैं अभी मेरा करियर अपॉर्चुनिटीज की, what are the different career opportunities after the UG and your PG also। अभी जो बच्चे है, मतलब जो स्टूडेंट्स है वो यूजी में आ गए, मतलब यूजी कर रहे हैं। कुछ बच्चे यूजी पास आउट होंगे, कुछ बच्चे पास आउट हो गए, कुछ बच्चे स्टूडेंट्स जो है वो एमएससी में है, कुछ एमएससी पास आउट हो गए, वो भी ज्वाइन हुए हैं इस वर्कशॉप में। तो कौन सी अपॉर्चुनिटी रह सकती है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन अवर लाइफ कि कौन से अपॉर्चुनिटीज है। मैक्सिमम टाइम अपने को मालूम नहीं रहती अपॉर्चुनिटी। तो अभी ये इतने सारे प्रोफेशंस है जो, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सबसे क्या बोलते हैं वो, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जैसे कि कलेक्टर होगा, कलेक्टर है हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जिसको बोलेंगे। सेक्रेटरी भी है उसके ऊपर, लेकिन जैसे कि अभी कलेक्टर बोलेंगे, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, ये सब चीजें इनमें आती है। और दूसरा प्रोफेशन है डॉक्टर, इंजीनियर है, लॉयर है, साइंटिस्ट है, स्पोर्ट वाला भी है, फैशन भी है। ऐसा नहीं फैशन बोले तो अच्छे कपड़े पहने और फैशन दिखाए। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। बिजनेस के बारे में नहीं बताऊंगा मैं क्योंकि ये सबसे अलग पार्ट है। एनिमेशन भी एक फील्ड है, एक्टिंग वाला भी एक फील्ड है, फोटोग्राफी है, और बहुत सारे करियर है जिसमें आप आपका करियर के बारे में सोच सकते हो, कैन डिसाइड अबाउट योर करियर। अभी ये जो फ्लो चार्ट मैं बता रहा हूँ कि आफ्टर 12th, जैसे कि आपका एक पॉइंट मिस हो गया, टर्निंग पॉइंट, लेकिन दूसरा टर्निंग पॉइंट है कि 12th के बाद आप इसमें इस फैकल्टी में आ चुके हो, आर्ट, कॉमर्स और साइंस में। आपने जो आर्ट में गए उन्होंने एक फील्ड चूज किया बीए, जो कॉमर्स में गए उन्होंने चूज किया, साइंस में गए उनके पास बहुत सारे भी ऑप्शंस थे, उसमें कि उनके दो कट गए जैसे ग्रेजुएशन में। उनके और भी ऑप्शंस थे, अगर वो गए होंगे तो फोरेंसिक साइंस, आर्मी ऑफिसर, जो भी है, फैशन डिजाइनिंग है, एनिमेशन है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये मतलब जो मैं अभी करियर अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ, इतना पॉसिबल नहीं है कि पूरा अपॉर्चुनिटीज बताना, ये समंदर जैसा है। समुंदर जैसा है नहीं, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज, इतना बताना इट इज नॉट पॉसिबल, बट आई विल ट्राई टू टेल दी अपॉर्चुनिटीज इन एवरी फील्ड। अभी ये सब अपॉर्चुनिटी जो है, मतलब ये जो फील्ड्स है उसके लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम होती है, जैसे कि फोरेंसिक साइंस में जाना है, फार्मेसी में जाना है, एग्रीकल्चर में जाना है, ये एमपीएससी यूपीएससी हो गई, साइंटिस्ट है, ये फेलोशिप भी है, इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो एक अच्छा जो चूज करो भाई, ये एक प्रोफेशन है, आप इसको कैसे किस एंगल से लेते हो
वो भी आप देख सकते हैं। इसमें मतलब टीचर जो है वो कौन सा क्वालिफिकेशन एक्वायर करके, जैसे डीएड, बीएड, नेट सेट, पीएचडी, नेट सेट जो भी है, उसके बाद उसको जो करियर प्रोस्पेक्ट्स है, जॉब प्रोस्पेक्ट्स है, ये आप देख सकते हो कि उसको कौन से अपॉर्चुनिटी है। और वो मतलब यहाँ से मैंने जो बता रहा हूँ ये आफ्टर ज्वाइनिंग द पोस्ट है, मतलब आप टीचर के प्रोफेशन में गए उसके बाद आपको ये स्कोप मिल सकता है। ऐसा नहीं आप डायरेक्टली डायरेक्टर बनोगे, जैसे कि आपने कोई क्वालिफिकेशन एक्वायर किया और डायरेक्ट डायरेक्टर बन गए, उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो भी आप मतलब देख सकते हैं। दूसरा है, अभी मैं फील्ड वाइज लूंगा, इसमें जैसे कि आर्ट फैकल्टी, अगर जिस स्टूडेंट ने चूज किया हो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। अभी इसमें जो ऑप्शंस है, उमेश सर स्क्रीन इज विजिबल ना? Yes, sir. Yes, Manish sir. Because I have experienced one thing and I shared to Umesh sir what happened with me in last lecture. तो ये जो बीए है उसके बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती है? जैसे बच्चे यही सोचते हैं ग्रेजुएशन में आने के बाद, अभी मैं बीए कर रहा हूँ तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मैं ये नहीं करूँगा, हो गया। ऐसा नहीं है, ये सब आप देख रहे हो इसमें वो सारे, अगर आप सोचते हैं कि जैसे एमए है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है, टीचिंग में जाना है तो बीएड है। उमेश सर कैन यू प्लीज म्यूट द अदर वन? उसके बाद Yes, उसके I did, sir. I did. You continue. उसके बाद में एक एमबीए वाला भी प्रोफेशन है, उसके बारे में अपन सोचते नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ एलएलबी भी है, उसके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ, एमसीए भी है। तो ऐसे प्रोफेशन के बारे में भी बच्चों ने सोचना चाहिए। ये चार्ट में मैं बता रहा हूँ कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या है, इतने सारे करियर्स है, मैं इसमें ज़्यादा इसको डिस्क्राइब नहीं करना चाहता हूँ। अभी मैं एक स्पेसिफिक चीज बताता हूँ कि जैसे आप इकोनॉमिक्स चूज करें, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वही चूज करो, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आप अगर ऐसा चूज करते हैं, आपको इकोनॉमिक्स करना है, एमए इकोनॉमिक्स, तो आप क्या करेंगे उसमें? एमए इकोनॉमिक्स बीए हो गया, एमए इकोनॉमिक्स किया, एमफिल भी कर सकते हो, पीएचडी भी कर सकते हो। मीनवाइल ऐसे भी कुछ अपॉर्चुनिटीज है जो आप देखोगे स्लाइड में, यूपीएससी कंडक्ट एन एनुअल एग्जाम टू रिक्रूट दैट पर्टिकुलर पोस्ट, वो भी एक है। एग्रीकल्चरल इसमें भी है, ग्रेजुएट जो हुए हैं उनके लिए बैंकिंग की एग्जाम्स रहती है। तो ऐसा करियर के बारे में भी आप सोच सकते हो। लेकिन ऐसा क्या होता है कि बच्चे एक ही चीज में रट लगाए हुए रहते हैं कि मैं उसमें गया हूँ, मुझे नेचर करना है और लेक्चर सीखना है। ऐसा नहीं है कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर उसका सपना है, उसका गोल उसने फिक्स किया है तो नो डाउट। बट अगर आपके पास और भी आप ऑप्शन चूज करना चाहते हो तो वो भी उसके बारे में सोच सकते हैं। मैं ये स्पेसिफिक की तरफ बता रहा हूँ। दूसरा ये है कि सोशल साइंस भी है, जिसमें एमए, एमएसडब्ल्यू, एमफिल, पीएचडी, उसके जो जॉब प्रोस्पेक्ट्स है, जैसे कि रिसर्च असिस्टेंट जो है वो भी है, रिकॉर्ड लिंकेज में भी उसको मिलता है, टीचर बन सकता है, समाज कल्याण में भी बहुत सारी पोस्ट होती है एमएसडब्ल्यू वाले के लिए, सोशल में भी जा सकता है अगर उसको सोशल वर्क करना है। इसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जिन्होंने एमएसडब्ल्यू करने के बाद एक क्लास लेवल की पोस्ट अचीव किया है, लेकिन अपन उसके बारे में सोचते नहीं है मैक्सिमम टाइम। अब ये इंग्लिश के बारे में मैं इसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ। देखिए क्या है कि कुछ ऐसे सोचते हैं कि भाई एमए इंग्लिश किया और वो टीचिंग में आ गया, हो गया खत्म। ऐसा नहीं है, देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। अभी भर्गोवाकर सर ज्वाइन है, उनको भी पता है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है इंग्लिश में, लेकिन उसके बारे में सोचते नहीं अपन। जैसे कि टीचिंग है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटीज में है, उसमें ठीक है, ओके। लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट में अच्छा कमांड है, सो यू कैन थिंक अबाउट अनदर अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। ट्रांसलेटर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ
उसको आप ट्रांसलेट करके जो एक पेज दिया और ट्रांसलेट किया। इंटरप्रेटर है इन मीडिया हाउस में भी कर सकते हो। इंडस्ट्रियल हाउसेस रहते हैं उनको उसके लिए जरूरत होती है। गवर्नमेंट एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनमें भी कुछ अपॉर्चुनिटीज होती है। टूरिस्ट गाइड है, यानी टूरिस्ट गाइड यानी ऐसा नहीं है कि भाई आप चिकलदरा गए और आपको चिकलदरा घुमाने का काम है, ऐसा नहीं है। टूरिस्ट गाइड वो अलग प्रकार के टूरिस्ट गाइड होते हैं। वो ट्रैवल एजेंसी में अलग अलग प्रकार के गवर्नमेंट की भी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जिनमें अगर आपका अच्छा बहुत ही कमांड हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसी भी चीजें हैं, ऑनलाइन कंटेंट राइटर, टेक्निकल ट्रांसलेटर भी होते हैं, डिकोडर बोलते हैं उसको। और कुछ ऐसी भी फील्ड है जैसे कि पब्लिक रिलेशन जो बोलते हैं अपन, कुछ एंटरटेनमेंट फील्ड होते हैं, कुछ ट्यूटोरियल्स होते हैं। आप आपने अगर लगा कि भाई मुझे ये करियर में कुछ नहीं मिल रहा है इसमें इंग्लिश का प्रॉब्लम है, एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। मेरा एक क्लासमेट है, अभी अभी है वो, मैं उसका नाम बताता हूँ। ही इज रवि पवार। ही इज वर्किंग एज अ टीचर इन दिग्रस स्कूल। उसने मतलब वो ग्रेजुएट हुआ, उसने वो टोफेल जो भी इंग्लिश की एंट्रेंस एग्जाम होती है, अभी आपको पता है। अगर आपको कोई भी फॉरेन कंट्री में जाना है तो उसके लिए आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना होता है इंग्लिश की। उसके बाद भी आप उसमें एंटर हो सकते हो। उसने क्या किया, वो एग्जाम वो सब मैं उसके बारे में ही सोचता था कि भाई ये क्या करेगा। उसने बहुत सारे किताबें पढ़ी और बहुत सारा नॉलेज एक्वायर किया, कभी वाइल्ड लाइफ की तरफ गया, लेकिन उसने उसके बाद इंग्लिश कम्युनिकेशन जो है उसके बारे में खुद से स्टडी किया। और अभी वो इंग्लिश स्पीकिंग के क्लासेस चल रहा है। यू कैन इमेजिन, जो बंदा एमए के तरफ भी नहीं गया, नाउ ही इज वेरी वेल, मतलब ही इज वेरी एक्सपर्ट, वो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। यू कैन थिंक, इफ वी लर्न, इफ वी क्लियर अवर कंसेप्ट, तो आप क्या क्या नहीं कर सकते हो। लेकिन इसके लिए एक ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ऐसा नहीं है आपने पीजी इंग्लिश किया और आपको सब मतलब आना चाहिए, कम्युनिकेट करके आना चाहिए। एमए इंग्लिश किया और आपको बोलते ही नहीं आ रहा है इंग्लिश में। मेरे यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एमए इंग्लिश को, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ नहीं, कई बहुत सारी जगह पे होता है, उसको एमए इंग्लिश करना होता है। उसको अगर बोला कि ये लेटर लिख के दो मुझे कि भाई ये लिखना है आपको, तो वो लिख नहीं पाता है। तो ये भी एक सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आप कर रहे हो उसके बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। अभी ये इसके अलावा भी कुछ ऐसे काउंसिल्स है अपने इंडिया में, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च है, इसमें भी अपॉर्चुनिटीज है। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंटिफिक रिसर्च है, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च है। इसमें जो बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं वो एक वेबसाइट को सोच ढूंढ सकते हैं, उसमें बहुत सारे पोस्ट रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मुझे हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है लेकिन इस फील्ड में नहीं आना है, टीचिंग फील्ड में, तो वो आप उसमें भी कर सकते हैं। एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसको किस चीज के बारे में इंटरेस्ट है वो भी उसमें, वो करियर चूज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप फाइंड आउट कर सकते हो और उसमें कैसे एंटर करना है वो भी सोच सकते हो और उसमें कर सकते हो। अभी जो बच्चे ग्रेजुएट हो गए मतलब हो रहे हैं, वो लॉ के बारे में भी सोच सकते हैं। उसमें तो बीए एलएलबी बीकॉम बीबीए के बाद में उसके कुछ एंट्रेंस है अच्छी, इसमें उसमें स्पेशलाइजेशन होते हैं। अभी हम बहुत बार ऐसे ढूंढते हैं कि भाई हमारे एजुकेशन के बारे में कोई स्पेशलिस्ट लॉ है क्या, मतलब लॉयर है क्या। तो हमने मैंने तो बहुत बार ढूंढा तो हमको स्पेशलिस्ट नहीं मिला, उनको वो पहले से पढ़ना पड़ता है कि भाई इसका एक ग्रेजुएशन एक क्वालिफिकेशन है, ये सब चीजें। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है ये क्या बोलते हैं साइबर लॉ, इसमें बहुत सारा स्कोप है। तो इसके बारे में अपन बच्चों ने सोचना चाहिए कि ये भी एक करियर है। उसके जॉब प्रोस्पेक्ट बहुत है, जैसे कि लॉयर तो ठीक है कि वकील है, ऐसा नहीं है कि आपके घर में वकील है और आप ही आपको, एक जज के लिए भी ऑप्शन है। मेरा एक जूनियर था, उसने ग्रेजुएट किया लॉ किया, उसके बाद उसने एग्जाम दिया, नाउ ही इज द जज। ये भी एक है। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है, आप उसमें चूज कर सकते हो, उसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अब ये जर्नलिज्म वाला है, आप मतलब बच्चों टाइम बच्चे क्या करते हैं कि भाई अपने गाँव में एक पत्रकार रहते हैं तो वो पत्रकार हो गए और उन्होंने न्यूज़ दिया, हो गया जर्नलिज्म। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप तो कोर्स भी कर सकते हो
अभी YCM में भी बहुत सारे कोर्सेज है जर्नलिज्म वाले, लेकिन ऐसा नहीं है यू जस्ट डू इट फॉर सर्टिफिकेट, यू टेक द सर्टिफिकेट एंड ओके, आपके पास सर्टिफिकेट है और आपको जॉब लगेगी ऐसा नहीं है, आपको प्रूव करना पड़ेगा आपने जो सर्टिफिकेट लिया है सही मायने में आपके पास भी वो नॉलेज है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है उसमें, वो भी सोच सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा होता है, वो बहुत अच्छी की तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन वो दूसरी फील्ड में नहीं जा सकता, वो ऐसा करियर चूज कर सकता है। अभी ये जो है इसको बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं फिजिकल एजुकेशन को कि भाई ये क्या है। मैं भी बहुत बार ऐसे सोचता हूँ, मतलब बहुत बार बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है, उसमें भी करियर नहीं है, लेकिन आपको उस तरीके का आपके पास स्किल होना चाहिए। जैसे कि आपने इतने सारे क्वालिफिकेशन एक्वायर कर रहे हो और इतने सारे एक्वायर करने के बाद आपको जो अपॉर्चुनिटीज है जॉब प्रोस्पेक्ट्स के बारे में, जैसे आप टीचिंग में जा रहे हैं, कुछ ऐसे टीचर मतलब लोग रहते हैं कि वो वही फील्ड चूज करना चाहते हैं, लेकिन ये भी सारे ऑप्शंस है, कोचिंग में गए अंपायर, इसके बारे में कोई सोचता नहीं है कि भाई मैं अंपायर क्यों नहीं बन सकता, और ये भी क्योंकि उस तरीके का आपको नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा। हेल्थ एजुकेशन कैसा, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हेल्थ रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, एरोबिक एक्सपर्ट है, या बहुत सारे ऑप्शंस है, उसमें भी आप उसके बारे में भी सोच सकते हो। लेकिन ऐसा बहुत बार ऐसा होता है कि वो उसके बारे में अपन सोचते नहीं, बच्चे सोचते नहीं है। दूसरा ऑप्शन बैंकिंग, ये बहुत सारे बच्चे अभी क्या हो रहे हैं कि ग्रेजुएट हो रहे हैं और उसके तरफ बढ़ रहे हैं, वो फ्लो बहुत ज्यादा फ्लो जो है बैंकिंग की तरफ जा रहा है, उसमें भी बहुत सारे पोस्ट है, उसके बारे में भी आप सोच सकते हो और वो फील्ड चूज कर सकते हो। अभी दूसरा है एक फैकल्टी, वो है कॉमर्स। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन क्या होता है कि कॉमर्स में आते हैं बच्चे और उसको बीकॉम करते हैं, साइमल्टेनियसली कोई तरह कोर्स करते हैं और एम.कॉम करते हैं। लेकिन इसको आप उसमें एम.कॉम में गए, कि उसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। जैसे कुछ ऐसे ऑप्शंस है, करियर ऑप्शंस की जो कॉमन है फॉर ऑल फैकल्टी, जैसे कि सिविल सर्विसेज बोलेंगे, वो कॉमन है, कॉमन टू ऑल। कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं वो कॉमन होते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं, इंश्योरेंस में जा सकते हैं। अ, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि अगर वो अच्छे हैं तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी एंटर हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बिजनेस मैनेजमेंट में जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है कॉमर्स के बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए भी। बैंकिंग में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, स्पेशली फॉर ये जो कॉमर्स में बच्चों के, जैसे प्रोफेशनल मैनेजमेंट कैडर है, ये सब चीज़ें जो है ये लेवल में होती है। मैक्सिमम जो रिक्रूटमेंट में जाते हैं बच्चे ये क्लरिकल लेवल में होती है, मिनिमम बच्चे जो है इस प्रोफेशनली प्रोफेशन में जाते हैं। अभी ये जो भी सेक्टर्स है फाइनेंशियल, इसको मैं ज़्यादा फोकस नहीं करना चाह रहा हूँ अभी। जो मैं चीज पे आ रहा हूँ, जैसे कि साइंस फील्ड है, क्या होता है कि अपन जब करियर चूज करते हैं बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे ऐसा सोचते हैं कि भाई हम लास्ट ऑप्शन रखते हैं आर्ट फैकल्टी को और उसके बाद कॉमर्स फैकल्टी को, जैसे भक्कर बदल ने बोला था, बहुत सारे लोग बताते हैं कि ऐसा उसको अपन ने नहीं सोचना चाहिए कि ये लास्ट ऑप्शन है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते इसलिए हम इसमें आ गए। बहुत सारे ऑप्शंस मैंने दिखाए, अभी इसके बाद मैं कॉमन ऑप्शन दिखाऊंगा, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। तो अभी मैं सबसे पहले साइंस के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं कॉमन अपॉर्चुनिटी बताऊंगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, और एडमिनिस्ट्रेटिव में भी क्या ऑप्शंस होती है। जैसे ये साइंस के बारे में अगर मैं बताता हूँ, अभी क्या होगा है कि एक कॉमन ट्रेंड बन गया है कि 12th एक करियर पॉइंट पकड़ के अगर उसको एडमिशन नहीं मिला मेडिकल इंजीनियरिंग में या फिर और कोई जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, तो वो एक सीबीजेड और पीसीएम चूज करने की कोशिश करते हैं बच्चे, और वो एक माइंड सेट करता है कि मैं कैसे तो भी ग्रेजुएट करूँगा। मैं बहुत बार बच्चों को, स्टूडेंट को बोलता हूँ कि यू कैन थिंक ऑन यूर अबाउट यूर करियर, तो बोलते हैं कि सर हम कैसे तो भी अभी ग्रेजुएट करेंगे।
लेकिन उनको भी, उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, पीजी भी कर सकते हैं। पीजी के बाद में ऐसा नहीं है पीएचडी करेंगे तो कुछ सिर्फ एजुकेशन वाला ही जॉब है या टीचिंग वाला ही जॉब है। वो उनको और भी जॉब है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था एक साइंटिस्ट वाला ऑप्शन है कि डायरेक्टली साइंटिस्ट बनेंगे। कुछ ऐसे ब्रांडेड कंपनीज है उनमें भी उनको ऑप्शन है और रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी ऑप्शन है। ऐसे हंड्रेड्स ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन बच्चे उनके बारे में सोचते नहीं है, सोचते नहीं तो उनको मालूम ही नहीं है, कहाँ सोचेंगे। मैंने तो बहुत सारे लेक्चर्स अटेंड किए कि भाई करियर अपॉर्चुनिटी में क्या बताते हैं, क्या रहता है, लेकिन इतने सारे अपॉर्चुनिटीज बताना भी पॉसिबल नहीं होता है। और ऐसा मतलब वो बच्चे की मानसिकता को लेके क्या अपॉर्चुनिटीज है वो भी सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी ये जो टेबल मैं बता रहा हूँ इसमें कॉम्पिटिटिव रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन है ग्रेजुएशन वाले बच्चों को। ये सभी ऑप्शंस आफ्टर ग्रेजुएशन वाले हैं, जैसे कि सिविल सर्विसेज है, फॉरेस्ट सर्विसेज है, बहुत सारे साइंस बच्चे हैं उनको ऑप्शन रहता है। बैंकिंग तो एक बहुत सारा ऑप्शन अल्टरनेटिव है। उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद है पीजी भी कर सकते हैं। अभी एक मैं स्पेसिफिक बता रहा हूँ, ये इसलिए नहीं कि मेरा बॉटनी है मैं इसलिए बॉटनी में बता रहा हूँ। जैसे मैंने इकोनॉमिक्स का बताया, जैसे हमारे इसमें अगर बॉटनी करता है तो वो एक ही चीज सोचता है कि मैं टीचर कैसे बनूंगा, टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनूंगा, मैं नेक्स्ट करता हूँ और वो ठीक ऐसा ही सोचता है। ऐसा नहीं है, उसको अगर वो सोचता है तो उसके बहुत सारे फील्ड्स है। एडमिनिस्ट्रेटिव तो है, उसको मतलब रिसर्च में भी जा सकता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में भी जा सकता है, रिसर्च साइंटिस्ट के लिए भी वो कुछ कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा एक एवरेज है उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है। उसको स्किल्स फ्रॉम मतलब वो जो क्या बोलते हैं असिस्टेंट क्यूरेटर है या फिर रिसर्च असिस्टेंट है, उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। लेकिन बच्चे क्या होते हैं डिस्करेज हो जाते हैं, उसको कुछ नहीं मिला तो उसी के बारे में सोचते फोकस करते हैं वो। Sir, और hello. हाँ ऐसा Sir, please raise your voice, sir. ओके ओके। तो बच्चे क्या करते हैं उसी के ही बारे में सोचते रहते हैं कि एक पकड़ के चलते हैं कि मुझे अभी आ रहा है सर आवाज। हेलो हाँ सर। आ रहा है सर, आ रहा है। ओके ओके। तो एक टीचिंग फील्ड या कुछ ऐसा फील्ड चूज के उससे कोई पकड़ के उसके बारे में ही सोचते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी की तरफ देखते ही नहीं। उनका भी बराबर है कि उनको मालूम ही नहीं है क्या अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि मैं दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ कि जूलॉजी है। जूलॉजी में ऐसी सिक्स स्पेशलाइजेशन है कि वो उसके बारे में सोच सकता है। जैसे आपने सुना होगा एग्रीकल्चर है, सेरिकल्चर है। हमारे गांव में एक डॉक्टर है, उन्होंने सेरिकल्चर मतलब वो कुकी प्लांटेशन जो है सील के बारे में उन्होंने वो प्लांट चालू किया। मैंने उनको बोला कि भैया आप कैसे कर रहे हैं, तो अगर वो स्किल आप एक्वायर करके वो खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। और बहुत सारे ऑर्निथोलॉजिस्ट आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है वो जिसके लिए फेमस हो चुके हैं, लेकिन आप अपन उसके बारे में सोचते ही नहीं है। तो ये सेम करियर मैं बता रहा हूँ कि टीचिंग एडमिनिस्ट्रेटिव है, रिसर्च के बारे में है, ये फिश फार्मिंग सेरिकल्चर है। ह्यूमन अगर आपके पास स्किल है तो आप ऐसा भी कुछ मटेरियल बना सकते हो जो कंपनी को भी दे सकते हो। जैसे हमारे कॉलेज में बहुत सारे स्लाइड्स की रिक्वायरमेंट होते हैं, परमानेंट स्लाइड के। अभी जो साइंस टीचर है, साइंस के बच्चे उनको मालूम है वो परमानेंट स्लाइड देखते हैं, मटेरियल आता है। तो ऐसा भी एक करियर है, जैसे कि भास्कर दादा ने बोला कि आपका अपने बिजनेस के बारे में या उसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो वो भी बच्चे उसके बारे में सोच सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एजुकेशन फील्ड ही चूज करो और एक क्या बोलते हैं अपनी जॉब सिक्योरिटी के लिए कोशिश करो। उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूँ, ये सबसे अपने लाइफ में हिडन रहती है, मालूम नहीं होता है। मुझे भी पता नहीं था मेरे टाइम में, मुझे अभी तक ये मालूम नहीं था कि ये भी फील्ड अपने लिए मतलब अपनी ग्रेजुएशन वाले बच्चे कर सकते हैं। क्योंकि अपन ने सुना, आपने सुना होगा सब लोगों ने कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो
आईआईटी जो अपन बोलते हैं, आईआईटी में अगर अपन जाते अपना बच्चा जाता है तो अपन आपको गर्व मतलब क्या बोलते हैं, आपको बहुत अच्छा महसूस करते कि मेरा बच्चा आईआईटी में है, मैं आईआईटी में हूँ, ऐसा स्टूडेंट बोलते हैं कि मुझे है। और वो बोलता है कि आफ्टर 12th ही ऐसा स्कोप है कि मैं आईआईटी में, ऐसा नहीं है। 12th के बाद भी बहुत ऐसा स्कोप है, ग्रेजुएशन में आप है तो उसके लिए एक जॉइंट एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट की जाती है फॉर द पीजी। अगर आप वो एग्जाम कर रहे हो क्वालिफाई तो आपको पीजी में एडमिशन मिलता है आईआईटी में। और आप वंस यू आर एंटर इन आईआईटी तो यू कैन अचीव योर गोल। उसमें तो कुछ वापस आने की बात ही नहीं है। लेकिन ऐसा भी कुछ बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन के बाद इंटर नहीं हो रहे, नहीं हो पाते, उनके लिए भी ऑप्शन है। उनके लिए क्या ऑप्शन है कि वो पीजी करेंगे, पीजी करने के बाद वो एक एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, जैसे गेट नेट है, वो भी बच्चे हैं। वो उसको वो एग्जाम देने के बाद वो उनके लिए पोस्ट रहती है जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोजेक्ट करके, वो उसमें ज्वाइन होकर उनका पीजी के लिए भी ट्राई कर सकते, पीएचडी के लिए ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, जैसे साइंटिस्ट की पोस्ट रहती है, वो मैं बताऊंगा आगे साइंटिस्ट कैसे मतलब वो जाते हैं, एज ए फैकल्टी भी वहाँ इंटर हो सकते हैं। लेकिन पीजी के बाद आप नेट सेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, आपने गेट भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, फिर क्या करोगे? आपको आईआईटी में जाना है। इसके लिए एक एग्जाम्पल है, मेरा एक मतलब जूनियर है, उमेश सर को भी पता है, आतिश जलियापुरकर, ही इज वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन आईआईटी नागपुर, आईआईटी नागपुर। और मेरा क्लासमेट था 12वीं में, वो एक इंगोले, प्रवीण इंगोले, ही इज वर्किंग एज अ एसोसिएट प्रोफेसर इन आईआईटी मुंबई। आप फाइंड आउट कर सकते हो ऑनलाइन जाके, आईआईटी में देख सकते हो कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। Hello, sir. यस सर। Sorry to disturb you. Please adjust your mic. The voice ओके is ओके। not coming to you. तो इसमें ये हो सकता है कि अगर उसको एंट्री नहीं मिली तो जो मैंने दो एग्जांपल बताए उनका एंट्री जो हुआ, एक जो एंट्री हुआ उसमें एंट्री ऐसा लिया कि एज अ प्रोजेक्ट स्टाफ। तो प्रोजेक्ट स्टाफ में जब उसने एंट्री लिया तो वो विदाउट नेट सेट गेट सेट एंटर हुआ। उसने एज अ प्रोजेक्ट असिस्टेंट करके काम शुरू किया। उसने उसके बाद उसको एक आईआईटी में एक स्कोप रहता है, उसने ही बताया मुझे, मैं उसको कोट इसलिए मैंने उसका नाम कोट किया है कि एक एज अ प्रोजेक्ट स्टाफ करके उसमें ऑप्शन रहता है पीएचडी के लिए। तो उसने वो ज्वाइन किया, उसने पीएचडी किया। नाउ ही इज द मेंबर ऑफ आईआईटी, ही इज द असिस्टेंट प्रोफेसर देयर। तो वो कैसे एंटर हुआ? वो डायरेक्टली एमएससी के बाद एंटर हुआ विदाउट क्रैकिंग दैट एग्जाम। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बहुत सारे ऑप्शंस है, अपन ने उसके बारे में सोचना चाहिए। अभी ये जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जो होती है उसको जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम फॉर एमएससी, ये इतने सारे मैं ऑप्शंस मैंने बताए, ये आईआईटी के इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ उनके एसोसिएशन में एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। ये एग्जाम पैटर्न होता है उसका, मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा बिकॉज ऑफ टाइम। ये कोर्सेस है आईआईटी के जो वो कंडक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिक्स मैथ के लिए है, बायोटेक्नोलॉजी लाइफ साइंस रिलेटेड भी उसमें रहता है। और ये इतने सारे इंस्टीट्यूट है, उनके कोर्सेस है। ये जॉब प्रोस्पेक्ट्स है आफ्टर ग्रेजुएशन एमएससी फिजिक्स और केमिस्ट्री। अभी ये बहुत बार ऐसा होता है कि एमएससी बायोटेक्नोलॉजी बच्चे चूज करते हैं, लेकिन वो मायूस होता है, मायूस होते कि उनको जॉब नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो वही फोकस रहता है कि मुझे सिर्फ टीचिंग में आना है, और टीचिंग के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता है। तो अगर वो चाहते हैं कि भाई मुझे इतने सारे उनको ऑप्शन है, टीचर बनना, साइंटिस्ट बनना, ये क्या बोलते हैं, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है, इंस्टीट्यूट्स है, उसमें भी वो ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अपन ने ट्राई करते रहना चाहिए। अ, अभी ये जो पोस्ट है उनके लिए, बायोटेक्नोलॉजी वालों के लिए इतनी सारे कंपनीज है और इतने सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, उसके
उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। ये इसके अलावा भी कुछ ऐसे फील्ड है साइंस में जिनमें आप आगे जा सकते, सॉरी। इसमें जैसे कि एक फोरेंसिक साइंस है, अभी ये नया वाला फील्ड आ चुका है। आपने ग्रेजुएशन किया, आप अगर एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करते हो तो आपको पीजी इन एमएससी फोरेंसिक साइंस में आपको ऑप्शन मिल सकता है। अभी बहुत सारा उसको स्कोप आ गया है। दूसरी बात है कि ये मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि वहाँ जिनको आपने सुना होगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पावर प्लांट रहते हैं। अभी बहुत बार अपन ऐसे सोचते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकती है, ऐसा नहीं है। उसमें केमिस्ट की पोस्ट रहती है। केमिस्ट की पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन होता है वो बीएससी और एमएससी रहता है। उसमें दो रहते हैं, जूनियर और सीनियर। अभी ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि एक मेरा बेस्ट फील्ड है, वेरी बेस्ट, एंड इज फ्रेंड ऑफ माइन फ्रॉम चाइल्डहुड। तो मेरा उसको 5वीं क्लास से फ्रेंड है। उसने ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए, पीजी भी किया, और उसका नाम बताता मैं, सुमित सिल्वे इज वर्किंग एज अ केमिस्ट इन भुसावल। भुसावल में जो पावर जनरेशन है, ये उमेश सर को भी पता है। तो बीएससी किया, उसके बाद उसने एमएससी भी किया, लेकिन उसने बीएससी लेवल पे केमिस्ट की एग्जाम दिया और वो क्वालिफाई हो गया। तो उसके एग्जाम होती है, लेकिन यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। उसने एग्जाम किया, अभी वो केमिस्ट, हिज वाइफ इज ऑल्सो सीनियर केमिस्ट। तो उसने उन्होंने भी एमएससी किया, उसके बाद उन्होंने वहाँ एग्जाम दिया। तो आप देखोगे आपको ओनली जस्ट एमएससी और बीएससी, आपके पास एक नॉलेज है, एक साउंड नॉलेज है उस सब्जेक्ट के बारे में, और आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर आप उसको क्रैक करो यू विल गेट जॉब। ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएशन किए और आप खाली बैठे हो। खाली क्यों बैठे हो? क्योंकि आप उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हो। अपन क्या करते हैं, मैं अंजनगांव में हूँ और मैं कुछ देख ही नहीं रहा हूँ और मैं खाली बैठा हूँ कि भाई इतना बड़ा ग्रेजुएशन किया मैंने और मैं खाली बैठा हूँ। अरे आपने कुछ ढूंढा, आपने कुछ एग्जाम क्वालिफाई किया, आपने कुछ एग्जाम को अकेले हुए, नहीं हुए, आपने कुछ ट्राई नहीं किया उसके बारे में, और आप बोल रहे हैं कि मैं ग्रेजुएट हुआ, पीजी हुआ और मैं ये हूँ और मैं वो हूँ और मैं कुछ नहीं बता। जब अपन किसको सिस्टम को दोषित है, सिस्टम में भी कुछ रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल है। वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर। कुछ ऐसे भी कोर्स है जैसे मैं नीचे बता रहा हूँ, इसमें भी एंटर हो सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग है, फिल्म है, ये मैं आखिरी में बताऊंगा जैसे कॉमन कोर्स है। अब ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है जैसे एमबीए। बहुत बार बच्चे बोलते हैं इसमें क्या पढ़ा है, बीबीए कर रहा है, एमबीए कर रहा है। और बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, एरिया बताया है, इसमें भी मैं ज़्यादा ये नहीं करता। उसके एंट्रांस एग्जाम होते हैं, बच्चों को ये भी मालूम नहीं होता कि भाई इसकी भी एंट्रांस होती है एमबीए के लिए, और वो उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता, उसका रिजल्ट भी आता, लेकिन उसको मालूम ही नहीं एंट्रांस हो गई और कि उसको एंट्रांस देना था, इसलिए वो उसमें एमबीए पे एडमिशन ले सकता। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में वो ऐसा होता है कि आप ग्रेजुएट हो, पीजी भी हो, आप इंजीनियर भी हो, लेकिन उसमें भी एमबीए की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उसको उस तरीके का नॉलेज, एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज भी आना चाहिए। तो उसको मैं थोड़ा सा खास ले रहा हूँ। अब ये एक ऑप्शन है रिसर्च वाला, तो 100% बच्चे तो नहीं जाएंगे, नहीं भी जा सकते, लेकिन एक मैं अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ कि ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। इतने सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, 216 वेरियस फील्ड में बता रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइफ साइंस है, बहुत सारे फील्ड्स है, बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन अपन उसको ढूंढते नहीं है। जैसे आपने ये कॉमन ये है सी एस आर, आई सी आर, आई सी, ये नाम ही सुना होगा, मैक्सिमम बच्चों ने इतना सुना होगा, गिरी नागपुर में है। अपने को ये भी नहीं पता है कि आपके रीजन में कौन से ऐसे नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट है जिसमें आप एंटर हो सकते हो, राइट फ्रॉम आफ्टर ग्रेजुएशन एज असिस्टेंट करके भी उसमें एंटर हो सकते हैं। आपको बहुत सर्च करना पड़ेगा वेबसाइट पे कि भाई कौन से अपॉर्चुनिटी है। पुणे में एक एनसीएल है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है, और एक एआरआई है, आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें आप आपका करियर चूज कर सकते हो। तो ये सारे इंस्टीट्यूट है, इसके नाम मैं नहीं लेना चाहता अभी।
अभी मैंने जो बताया था कि साइंस में आप इंटर हो चुके हो, पीएचडी हो गया है, तो वो सारा बच्चे बच्चे मैं साइंटिस्ट कैसे बनूंगा, कौन से ये साइंटिस्ट की पोस्ट रहते हैं। जैसे हमारी इसमें रहता है असिस्टेंट प्रोफेसर रहता है, एसोसिएट होता है, प्रोफेसर होता है, और वो आगे जाते हैं। वैसे साइंटिस्ट में भी होता है BCD, ABCD के टाइप में होता है। उसके बाद में उस रिसर्च में अगर आपको जाना है तो आप रिसर्च एसोसिएट के जाते हो, जा सकते हो, रिसर्च असिस्टेंट करके जा सकते हो। और सबसे आखिरी वाला है कि आपके पास वो भी सब चीज़ें नहीं है एक्वायर की है, लेकिन आपको कुछ तो भी जॉब होना, आप साइंस ग्रेजुएट हो तो लैब असिस्टेंट करके भी जा सकते हो। ऐसा नहीं कोई भी जॉब, आप वहाँ इंटर होने के बाद भी कुछ ऐसे फील्ड चूज कर सकते हो। तो ऐसा भी होता है, लेकिन अपने को मालूम नहीं होता है कि क्या क्या है। ये सब सारे इंस्टीट्यूट के लोगों है, जीरी जो मैंने बताया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये सब चीज़ें हैं। डीबीटी है बायोटेक्नोलॉजी वालों के लिए, एनसीएल है, ये सब चीज़ें हैं। इसमें बहुत सारा स्कोप है। ये एक एग्जांपल मैं बताता हूँ मेडिसिनल प्लांट के बारे में। उसके भी बहुत सारे बोर्ड्स है, उसमें भी बहुत सारे पोस्ट निकलती है। इतने सारे अपॉर्चुनिटी है फार्मा कंपनी है, इसमें आपको ये जॉब मिल सकता है। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसके पीछे बहुत सारे बच्चे भगते रहते हैं और वो ग्रेजुएशन में सोचते हैं कि मैं यूपीएससी करूँगा, मैं यूपीएससी करूँगा, मैं यूपीएससी करूँगी, और करते कुछ नहीं उसके बारे में। क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया है, थाउजेंड्स ऑफ बच्चे, लाखों बच्चे एग्जाम में अपियर होते हैं, लेकिन वो इतने अपियर हुए उसमें से 3 या 5% भी बच्चे पढ़ाई करने वाले होते हैं, बाकी सब फ्लो में आने वाले होते हैं कि दे रहे भाई एग्जाम दे के मुझे जमता है तो जम जाते जम जाए। तो अभी आप देखोगे ये सबसे मतलब सुपर क्लास में जिसको बोलते हैं अपन, इतने सारे प्रोफेशन हैं। ये आईएएस जो है, जैसे कि एक प्रोफेशन जो मैंने बताया, तो आईएएस इतना ही मतलब नाम काफ़ी है सभी को। और एक दूसरा प्रोफेशन आईएफएस है। ये आईएएस अपने लिए नहीं है क्योंकि ये ऑप्शन अपना इंजीनियरिंग वाला है। आईआरएस है, इसमें एक आईपीएस है। आपको अगर पुलिस में जाना है, मतलब आप बचपन से अपना सबका आपका सपना है, लेकिन अच्छा ऑफिसर बनना है, तो ये भी एक आपका ऑप्शन आपको चूज कर सकते हो। इसके लिए आपको सभी चीज़ें फॉलो करना पड़ेगा। ये 3 पार्ट में उसका मैं एग्ज़ाम के बारे में नहीं बताऊँगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो कैसे-कैसे एग्ज़ाम्स कंडक्ट होती है। उसके लिए स्पेशल एक लेक्चर लगेगा, वो कैसे क्रैक करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है। अभी अपने स्टेट में जो अपन ये एग्ज़ाम्स होते हैं, इसमें कैंडिडेट पोस्ट होते हैं, अपने को बहुत बार मालूम ही नहीं होता है कौन से एग्ज़ाम हुए और कौन से एग्ज़ाम हुए और क्या। अपने को सिर्फ इतना मालूम होता है कि तहसीलदार की पोस्ट होती है और तहसीलदार मेरे को बनना है। उसके अलावा भी पोस्ट है, डिप्टी कलेक्टर से लेके रजिस्ट्रार लेके चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, ये सब सारे ऑफिसर्स हैं। वो ग्रेजुएशन के बेस पे वो अगर वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अभी ऐसा नहीं है कि सभी लोग को कलेक्टर या सभी लोग को तहसीलदार नहीं बनेंगे। कुछ जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपका अच्छा होता है तो आप 3 पोस्ट में भी जा सकते हो। पहले जैसे नायब तहसीलदार ये मैं बता रहा हूँ, सेक्शन ऑफिसर है, ब्लॉक डिवीजन है, इसमें के कुछ पोस्ट है जिसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन या कुछ प्रोफेशन की जरूरत होती है, लेकिन कुछ कॉमन पोस्ट है जो ग्रेजुएशन के बेस पे जा सकती है। ये असिस्टेंट मतलब ये है, आप बहुत बार सुना होगा, सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर है, पीएसआई बहुत बार बच्चे सुनते हैं, टैक्स असिस्टेंट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स यूपीएससी कंडक्ट करती है इस प्रोफेशन के लिए, ये करियर के लिए। लेकिन मैक्सिमम टाइम बच्चे क्या करते हैं कि वो जब भी उसके बारे में सोचने के लिए जाते हैं तो उनको पता नहीं होता है एक बात, और वो डायलेमा में जाते हैं कि मैं ये करूँ कि वो करूँ। अगर आप अच्छा नॉलेज एक्वायर करते हो, अच्छा पढ़ाई करते हो सिस्टमेटिकली, आप ग्रेजुएशन में भी हो, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हुआ हो, तो आपको जैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं यानी जैसे आपको बीए, बीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी करते हो दिन-रात, अगर आप दिन-रात उसको फ़ोकस करके इसकी भी पढ़ाई करोगे तो आपको कुछ ना कुछ परसेंट सक्सेस मिलेगा। तो फिर आपको कुछ ना कुछ पोस्ट मिलेगी, तो आपको उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा।
ये भी एक पोस्ट है, बहुत सारे। ये तो कंपेरेटिव चार्ट है। अभी इसके अलावा, एडमिनिस्ट्रेटिव के अलावा, कुछ जो बच्चे एनी ग्रेजुएट है, उनको जो प्रोफेशन है, अभी एक कॉल सेंटर है। ऐसा नहीं है कि कॉल सेंटर में सिर्फ आपने को बोलने का काम रहता है। इसके लिए एक एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि एग्जांपल बहुत जरूरी होते हैं। एक मेरा स्टूडेंट है, वो ग्रेजुएशन में था, बीएससी में। उसको ग्रेजुएशन में कुछ इंटरेस्ट नहीं था बीएससी में ज़्यादा, तो उसने वो छोड़ दिया। बिजनेस से उसने ये कंपनी ज्वाइन कर लिया, एक कॉल सेंटर। उसमें अभी वो अच्छे पोस्ट पे काम कर रहा है, क्योंकि उसका क्वालिफिकेशन ये होता है कि आप 12th पास हो और उसके बाद आपकी अच्छी स्किल हो तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो। तो वो भी एक ऑप्शन है, फार्मेसी रिलेटेड है। अभी ये बैंकिंग वाला कॉमन ऑप्शन है जो मैंने बताया, ये सभी लोग चूज कर सकते हैं। अभी ये एक ऑप्शन है, इसमें इतने सारे पोस्ट होती है बैंकिंग में। आप उसमें भी पोस्ट चूज कर सकते हो, प्रोफेशनल ऑफिसर से लेके तो इतने सारे पोस्ट है, लेकिन ये अलग अलग क्वालिफिकेशन वाले के लिए। उसके बाद ये लॉ के लिए मैंने बताया था सबसे पहले, ये भी सबके लिए कॉमन है कि कोई भी है जो उसको चूज कर सकता है। अभी ये एक अलग फील्ड में बता रहा हूँ, एनिमेशन। क्या होता है कि ये सब चीजें मालूम नहीं होती है। मालूम रही तो कुछ बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं एनिमेशन में, लेकिन उनको पता नहीं होता कि क्या करना है, उसका क्या जॉब प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं। ये एनिमेशन में उसको इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं, वेब डिजाइनिंग, वीडियो इफेक्ट्स, 3D एनिमेशन, और इतने सारे कोर्सेस होते हैं। उसको जो जॉब ऑफर्स मिलते हैं, डिजाइनिंग है, फिल्म में है, ग्राफिक्स में है। मेरा रिलेटिव है, मेरा साला ही है, उसने अभी एनिमेशन कोर्स किया, लेकिन उसने एक फ्रेम बॉक्स में एक कोर्स किया है। वो फ्रेम बॉक्स आप वेबसाइट पे डालोगे, वो फ्रेम बॉक्स में इन एसोसिएशन विद वन यूनिवर्सिटी उसको एक डिग्री दिया। लेकिन उसमें क्या होता है, इन ये फील्ड ऐसे, आप इसमें पिक्चर देखोगे, ये सभी एनिमेशन के बेस पे पिक्चर बनाए गए हैं। ऐसा नहीं इस फील्ड में कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन आपका उसमें स्किल अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी स्किल अच्छी डेवलप करते हो तो आपको कोई भी कंपनी, कोई भी सेक्टर आपको चूज करेगा आपके जॉब के लिए। ये एक कॉमन करियर है इंडियन रेलवे, तो सबको पता है, इसमें बहुत सारे पोस्ट निकलते हैं। ये भी आप चूज कर सकते हो। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो उसमें वो भी एक चूज कर सकते हो। ये स्टाफ सिलेक्शन वाला है, इसमें भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं, लेकिन अपने को मालूम नहीं होता है। अभी ये दीज आर ऑल दी करियर अपॉर्चुनिटीज as per my survey, whatever the things that I have searched, I read uh, by using the various books. As I have worked as a placement officer, I took the training from the university also, and they have provided us booklets for the career counseling. I have also taken the reference from this thing, and so many things I have searched, and I have personally contacted to the person who are enter in the various field. Uh, because of that, I can take their name, I can put their name in my talk। तो ये सभी अपॉर्चुनिटीज है जो मैंने आप सभी को बताई। इसके अलावा मैं एक लास्ट वाली चीज बताऊंगा। क्या होता है, बच्चे अपने खुद को ऐसा बोलते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मैं गरीब हूँ, पुअर हूँ, या फिर मेरे को इतना मैं बेयर नहीं कर सकता हूँ। उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ वो ऐसा नहीं है। अभी इतने सारे अपॉर्चुनिटीज आ गए हैं, फेलोशिप्स आ गए हैं। आप देखोगे इस स्लाइड में तो स्कॉलरशिप सिंगल चाइल्ड के लिए, आप अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड हो तो ये इंदिरा गांधी पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप मिलती है। आप इसी में जाना चाहते हो, एक मेरिटोरियस ये भी रहते हैं फेलोशिप। अगर कोई बच्चा पीजी के बाद पीएचडी करना चाहता है, लेकिन वो रैंक होल्डर होना चाहिए। ऐसा नहीं Hello, है कि sir. सर हो गया 2 मिनट सर, No, 2 मिनट। no, sir. Your voice is not clear. ओके ओके। ये जो स्कॉलरशिप होती है, ये सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए भी होती है। नाउ नाउ यू कैन हियर मी ना सर?
हेलो। Yes, yes, sir. ओके ओके। Yes, yes. तो ये यूजीसी वाला जो मैं बता रहा हूँ, ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे अभी ग्रेजुएशन में हैं, वो आफ्टर ग्रेजुएशन उनको पता होना चाहिए कि भाई हमको इतने ये सारी भी फील्ड्स है, ये सारी भी आपको फेलोशिप मिल सकते हैं। और एक पोस्ट डॉक के लिए भी फेलोशिप मिलती है, ये तो बाद में की बात है, क्योंकि अभी तो बच्चे पीजी होने के हैं, यूजी से पीजी में जाने वाले हैं। तो ये भी एक है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, ये एक इंस्पायर फेलोशिप है। ये सभी बच्चों ने या टीचर को भी पता है। हमारे मेरे कॉलेज में एक स्टूडेंट है, उसका नाम असवार करके है, पीसीएम ग्रुप में है। उसको 85 मतलब 85 के ऊपर परसेंटेज मिले थे एंड शी इज क्वालिफाइड फॉर इंस्पायर्ड फेलोशिप। उसको एक सर्टिफिकेट मिला बोर्ड से, यू आर क्वालिफाइड फॉर बीएसटी इंस्पायर्ड फेलोशिप। लेकिन उसको एक गाइडलाइन नहीं मिल रही थी कि भाई मैं इसको अप्लाई कैसे करूँ। तो मैंने उसको जब फाइंड आउट किया कि शी इज द मेरिटोरियस, एंड जब मैंने अनाउंस किया बच्चों के सामने, तो मुझे जब उसने कॉन्टेक्ट किया तो मैंने उसको बताया कि आप ऐसे ऐसे जा सकते हो, डीएसटी को अप्रोच करो ऑनलाइन। उसको मैंने थोड़ा हेल्प किया। नाउ शी गॉट 80,000 पर ईयर फेलोशिप एंड फंडिंग फॉर दी प्रोजेक्ट। और वो किसके लिए, ये फेलोशिप किसके लिए, जो बच्चे बेसिक साइंस में आ रहे हैं, बेसिक साइंस जो आप नीचे सब्जेक्ट देख रहे हो, ये किसके लिए है कि बेसिक साइंस को बढ़ावा देने के लिए। कि क्या होता है कि मैक्सिमम बच्चे 12वीं के बाद जो क्रीम रहती है वो दूसरे फील्ड में जाती है। तो गवर्नमेंट का ऐसा है डीएसपी का कि जो कुछ बच्चों में टैलेंट है, वो बच्चे अगर इस फील्ड में आते हैं तो वो कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव कुछ कर सकते हैं। उनको बढ़ावा देने के लिए ये फेलोशिप किया है। और बहुत बच्चों को ये स्कीम हर साल बच्चे पूरे इंडिया में से चूज करते हैं और उनको फेलोशिप देते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है। क्योंकि ये और ये KVPY है, किशोर विज्ञान पुरस्कार मिलना, ये तो 10वीं से लेके भी मिलती है बच्चों को। ये सब चीज़ें जो ये फेलोशिप के बारे में है। तो दिस आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर, especially thanks to the organizing team who give me an opportunity to deliver my talk, what I want to say to the students। मेरा पहले से ये रहा है कि जिस दौर से मैं गुजरा हूँ, ये बच्चों को फेस करने का काम न करे, उनको अपॉर्चुनिटीज के बारे में मालूम गिरे और उनको सभी चीज़ें मालूम होना चाहिए, उनका अच्छी तरीके से काउंसलिंग होना चाहिए। एक्चुअल में मेरा ये फील्ड अलग है, मेरा बॉटनी फील्ड है, लेकिन मैंने ये चूज इसलिए किया है कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ऐसा अपॉर्चुनिटीज के बारे में मालूम होना चाहिए, उनकी काउंसलिंग होना चाहिए, तभी वो आगे जा सकेंगे। जो हमारे साथ हुआ वो कुछ बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने ये सोशल टाइप में मैं किसी को भी बोलता हूँ कि भाई आप मुझे एक चांस दो, ताकि मैं बच्चों के सामने वो पेश कर सकूँ। और ये चांस मुझे ये जो कॉलेज इन्होंने दिया अच्छा मौका, इसलिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और उनके इस कॉलेज के जो मतलब इंस्टीट्यूट के सोसाइटी के जो सेक्रेटरी है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस कॉलेज के प्रिंसिपल सर जो राष्ट्र के सर है, उनसे मेरी बहुत बार मुलाकात होती है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। विजय दादा टोपे, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है, उनके जो कन्वीनर है डॉक्टर उमेश कनेरकर सर, जिन्होंने ये नेशनल लेवल का वर्कशॉप रखा, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है, जो मेरे सभी लोग अच्छे थे हैं। और अभी 2 घंटे से जो मुझे सुन रहे हैं, जो स्टूडेंट्स ऑडियंस है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और मेरे इस टॉक को या लेक्चर को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।